I think still few are connecting, and we hope they will get connected. In the meantime, I think it's good. I think a lot of training enthusiasts have joined Timiraji is us. also here. Dr. Good Timiraji, afternoon. Yeah. good evening Very good and afternoon. Very good welcome. evening. Good afternoon. So, good evening, ladies and gentlemen. I think today's talk, sorry for the inconvenience because of some mistake. I think copy mistake is that happened. Uh, we have the topic today: successful parenting during pandemic, and we are all undergoing like work from home system, and it is very important for us to get used to and discuss about those things and make situation as an opportunity for balanced personal and professional life. So that is what is the ultimate we all want, and in all the discussions, especially ISTD Noida chapter, try to achieve that, to be current and to be relevant. Today's talk will be delivered by Nilanjan Mukherjee and moderated by Scholar Swapna Rawat Balyan. You have it, I your just name changed is it. Rawat. Rawat Balyan, right? Yes. Absolutely fine. So we will start with introductory talk from our chairperson, Ms. Sima Sinha. So I will invite her to say a few words. Okay. Madam, Hello, good afternoon, and namaskar to all of you. So during this pandemic, I hope you all and your loved ones must be safe and fine. That so on the behalf of our ISTD Noida chapter, so I extend my warm welcome to all the members and all the guests who have been at a connect with us till date and who are about to connect actually. So my special welcome to Mr. Nilanjal actually Mukherjee, the speaker of the day, in fact, and I'm very thankful to him actually because he accepted our request in such a short notice actually, and I'm sure that he will be enlightening us with his rich experience to all of us. So little about the IST I would like to tell you, in fact, because Indian Society of Training and Development is right now celebrating its golden jubilee, in fact. So 50 years since inception, a great achievement for the ISTD, in fact. So it got established in 1970, and then 50 years since inception. So ISTD is actually the national level professional and non-profit society, registered society, and this society is affiliated to the international IFTDO, that is International Federation of Training and Development Organization, USA, and the ARTDO, that is the Asian Regional Training and Development Organization, ARTDO actually. So it has got a large membership of the individual as well as the institutions, in fact, and the membership is reaching approximately to 10,000. So it's a great achievement by the Indian Society of Training and Development, and we are having the 48 chapters all over the country, in fact. So ISTD organizes the training programs all over the country, both at the chapter level as well as the national level, in fact. And ISTD, the society publishes a quarterly journal, Indian Journal of Training and Development, actually for the benefit of its members, in fact. The ISTD run the postgraduate diploma in training and development. It's a distance learning course recognized by the government of India. It's a 18-month distance learning course actually. So it is for the benefit of all the professional people, in fact, who want to make their career into the field of the training and development. It has been actually ISTD has started initiated. Apart from these things, actually, I would like to mention about the ISTD has initiated so many awards actually for recognizing their members and encouraging the HRD people into their oh, shut, just a moment, into the country actually. So not taking a much time, in fact. So I know that we have already, because of the some lapses, in fact, we have already have become late, in fact. So I'm really sorry for on the behalf of all the ISTD managing committee, ISTD Noida chapter managing committee. I'm really sorry for the inconvenience to all the members. And
I'm welcoming once again all the participants who have connected yet, and I'm sure that with the rich experience and the passion of Mr. Mukherjee, actually, he will be enlightening us on the topic. Such a relevant topic is there. We all become the better parent, and this topic is so close to of our heart, in fact. So let's see. So I'm very curious to hear to Mr. Mukherjee on this, and I'm welcoming to Swapna ji also for moderating this program and accepting this request. So over to you, Amajit. Once again, welcome to Right. everyone. Yeah. Thank you, madam. Nilanjan, may I request this share if you can stop for some time, He has 5, already 10 shared. minutes. He has already shared. Yeah. Okay, I have Right. removed. Yeah. Oh, No problem. welcome. I will just do the other formalities before, so that you start in time. You will get 40 minutes complete, so no worry. Right? So as you all are now aware, just I will confirm from Group Captain Rajappan, he is there. Are you listening us? Yes, yes. Now we are getting your voice also. Sir, Okay. welcome. How is Bangalore? Thank you. Right. So we'll have a talk by Nilanjan and successful parenting during pandemic based on his expertise and experience. And it will be, I think, good that we will listen his new viewpoints. Nilanjan is a young HR professional who has experience in renowned MNCs and Indian companies. He is the recipient of the Rising HR Star of the Year Award and Corporate Mentor Award, as well as multiple other awards and accolades. I think I have seen the list of his awards. There are too many he has got. So congratulations and wish you many more, I think, and Yeah, keep thank you. doing great. He's a member of professional bodies like ISTD, IMA, NHRD, and I generally keep telling people, I mean, you should become the member of the professional bodies, and it is good. And he's there live. He has authored a self-help book named You Will Succeed, and great. He is the published author. He has also participated in socio-economic forums on New Channel. He is a part of the academic and advisory board member of the management institutions, and he holds multiple degrees, diplomas, and certifications. On the personal front, he is a passionate traveler who has already visited 18 states, 4 union territories in India, and few neighboring countries. Its seniors, colleague, friend, and members, family members, say that he has a great sense of humor. So this author has a great sense of humor, and it is we will be able to see during our this monthly talk today. The We love moderator to for see. the day is called Swapna Balyan from Indian Air Force. Her husband is still in Indian Air Force and posted at Hindon. She has been the headmistress of St. Thomas School, Ghaziabad, a multi-skilled professional with 10 years of experience in airport management, training and development, people management, academic tutoring, human resource management. With all varied experience, I welcome you, Scholar Swapna Balyan, for this monthly talk. Now, I think you all must be waiting. I will not take much time. And now I invite Nilanjan Mukherjee to take the dais. Sorry, before that, I think I will request Swapna Balyan, our moderator, to give a theme talk. Thank you, sir. Thank you so much. I hope I'm loud and clear to all of you. Very much. So, Yes. ladies and gentlemen, raising a happy and a healthy child is, I think, one of the most challenging job any parent can have, and of course, one of the most rewarding also. But still, many of us don't approach this parenting job with the same focus as we approach our own professional jobs. So, and for most of us, I think it took a whole of this pandemic to realize this for ourselves individually.
A very, very good evening to all of you, all the participants who've joined us today. As you all know that the entire country is once again under another lockdown because of this second wave of COVID in the country. So the parenting as a profession seems to be really long and very lengthy process for us. And keeping that in mind, since the last year, we all have been parenting our children 24/7, doing our professional work at home. Keeping all that in mind, I think today we have chosen this very, very apt agenda point for our monthly talk, which is successful parenting, which I think is very significant for all of us. And more so in today's scenario, in these unprecedented times of COVID pandemic. When we talk about parenting, it is a practice which is conducted by all parents around the world, and they focus mainly on few goals. So firstly is to provide a very, very healthy, conducive and a very happy environment to their kids. That is the foremost goal of any parent. Secondly is that they want their wards, they want their children to transform them into a very, very productive adult and a good independent citizen. And thirdly, they want to transmit and transfer all the values and ethos and cultural values what the parents have acquired from their parents, and now they want their children also to learn. So these are the main three goals that we all interact with our children on a day-to-day basis. So most of us have got kids, small, big or small, adult, or whichever age they are. And I think all of us, whether it is the normal times or it is the pandemic time, we all try to maintain a very, very high level, high quality, very, very positive parent and child relationship with our kids. Even right now, currently we all are sitting at our homes, dealing with our children, trying to balance our work life with our personal life. So at this point I feel that our individual parenting style becomes very, very important, and most of the experts that I have heard from them saying that the parenting style is so important that it can influence the child, ranging from how much he or she weighs to what he or she feels about himself. So a parenting style can have a positive and can have a very, very adverse effect on our children. So we need to know about our own individual parenting style, because the way we interact with our children, the way we discipline them, everything will have a huge influence in their life in the times to come ahead. Now, whether it is school in today's time, or it is office, or it is work from home, I think most of the parents are dealing with uh, you know uh, uh, handling their children at home, managing their work life and personal life. In fact, if I tell you, I remember the last year, the month of March and April 20, when the country had undergone the first lockdown. Most of us initially loved that time, and people were posting in very beautiful family pics on Insta and Facebook, and giving the taglines that having wonderful time with the families. But unfortunately, this very good, wonderful, happy family time didn't last for very long. And being a headmistress, I can tell you that we used to hear stories from parents talking about how difficult it is to manage kids at home. Earlier, when the in-person classes used to be on, half of their worries used to be, out of the homes, because we teachers used to handle most of the, most of the issues with children. And I think 8 hours or so, 7 to 8 hours, they used to be in the school. So parents used to get some time, but now it is the other way around. I have two kids. My son is around 5 and my daughter is 9. So I remember that my son was never interested in attending any of the online classes, and most of the time he would sit with his Batman mask on or Iron Man mask on, and he would try to scare the teacher and distract all the other students. So me and my husband, we took a decision of taking him out of the school and homeschooling him for the rest of the time, at least for the time the corona is currently around us. But I made this very effective, lovely looking schedule and timetable for both of them, and which had study time, me time, play time, and everything.
But with all those, daily works and handling school, online classes, their online classes, I myself found it very, very hard after a month or so to stick to that schedule. And I remember my son, he had striked all the study time and he had written me time there. He himself had striked everything, all the study time. So I don't know. I was pretty sure that I could never get that me time, but my kids learned what is me time for them. So that is what is happening, in our individual homes. And here I am, looking forward for 2021. I was really hoping that the school would open and we would get some me time, but unfortunately we are still stuck in in our houses. So with the schools and workplaces completely closed, and it doesn't seem to be, the picture doesn't seem to get cleared in the near future. Corona is still lingering around, and with everything on our head, school work, homework, online classes, managing that social distances, not just for us but with our kids also. We need to tell them, don't go out, don't speak to others. And we at this point of time, we don't get to interact with our loved ones, with our relatives. We don't get to go out, no vacations at all. I think this makes up a perfect recipe of a complete burnout at this time. So what should we do? Should we unlearn the parenting practices that we had acquired earlier, we used to practice earlier? Should we learn something new? What is the future of our children? How is it going to be? What is the picture likely will be in future? What will be our schedule at our homes? Because it can't continue like that. We parents cannot be 100% all the time, 24/7 enthusiastic about, oh wow, let's play, let's have a great time. It won't be humanly, it won't be possible. So what should we do? I think we have so many questions regarding what is positive parenting, how should we approach to what should be the approach towards this positive parenting in these times of corona. And to answer all these questions, we have with us today Dr. Nilanjan Mukherjee, a renowned speaker amongst us, and he's going to share his views and give us some insight about what is positive parenting with regards to NLP. Of course, I have absolutely no idea about what is NLP. All I understand about NLP is to program some neurons and get some change in our behavior, but completely clueless. So Dr. Mukherjee is going to talk to us about NLP. And so, dear members, let me just tell you, the talk by Dr. Mukherjee is going to be about 40 minutes, after which 40 to 45 minutes it will extend. And after which we will take on any questions if you have. I would request you to please put down your questions in the chat box so that we can take it up later. So I hand over the platform to Dr. Mukherjee. Over to you, sir. Yeah, thank you very much. And thanks to all the people who have participated today for this session. Let me share my screen to you first. Yeah. Is the screen visible? Can you quickly write in the chat box as yes, 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 so that I'm able to understand? Yeah, okay. So thank you. So this is in your first screen, the successful parenting through NLP techniques. So let me begin with what is affecting today's children. Okay, so these are the 4 key factors which is affecting today's children. First is talent. Now you will realize that however whatsoever is the age of your child today, when you were at the same age, you will realize that today your child is much more talented than you were at the same age. And this is because of the present environmental condition, the situation, the exposure which the child has got. Abhi, just imagine kijiye ki, and it is also a fact that you respect only that person who is more talented than you. Yes or no? Can you quickly write in the chat box yes or no? People generally respect those who are more talented than them. For example, if you have a boss of yours whom you feel that he is not having greater talent than you generally feel there is no point talking to this person. So everybody, it is a human tendency that we feel
happy to talk to a person who is more talented than us. Now imagine a situation इमेजिन कीजिए कि आपकी मदर या आपकी वाइफ आज किचन में कुछ बहुत ही अच्छा बना रही है एंड द एरोमा इज वेरी वंडरफुल, और आप किचन में चले गए और फिर मिसेस को कहा कि एक काम करें कि क्यों ना आप थोड़ा सा अजीनोमोटो, थोड़ा सा विनेगर डाल दीजिए जो भी आप बना रही हैं, और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए, आहो क्या बढ़िया खाना बन जाएगा, फिर तो इसका टेस्ट और चार चांद लग जाएगा। सो आप जो कि किचन के इंचार्ज हैं अभी, it could be other way around also, it could be your husbands, probably they might be better cooks. So जो भी किचन में उस दिन इंचार्ज है, अगर उसको आप इस तरह का फीडबैक दें तो वो क्या कहेगा? वो ये कहेगा भाई आप अपना काम कीजिए, जाके न्यूज़पेपर पढ़िए, टीवी देखिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म देखिए, मुझे ये सब मत बताइए कि मुझे क्या करना है। भाई क्योंकि उनको ये लगता है कि वो किचन में ज्यादा टैलेंटेड है। अब ये सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि आपके हस्बैंड की जगह या आपके बेटे की जगह संजीव कपूर उस समय किचन में होते और मैडम से कहते कि मैडम ये आप क्या बना रही हैं? तो अच्छा आप ये बना रही हैं, अगर इसमें आप थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा अजीनोमोटो डाल दें, थोड़ा सा कर्ड डाल दें, थोड़ा सा योगर्ट डाल दें, और ये बहुत ही अच्छा बन जाएगा, थोड़ा सा करी पत्ता इसमें डाल दीजिए। सो आपको क्या लगता है वो मैडम या उसकी मम्मी या उसकी मिसेस सुनेंगी? जिसकी भी बात हो रही है बिल्कुल सुनेंगी। हो सकता है वो डायरी लेके नोट भी कर लें भाई, बिकॉज उनको पता है कि संजीव कपूर इंडिया के बेस्ट रिनाउंड शेफ हैं एंड दैट पर्सन इज मोर टैलेंटेड देन मी। सो आज के किड ये सोचते हैं कि हम ज्यादा टैलेंटेड हैं, और कई मर्तबा ये होता भी है। आपने देखा होगा दूसरा जो चीज अफेक्ट कर रहा है वो है टेक्नोलॉजी। पहले 1980s या 1980s से पहले जो भी पेरेंट्स होते थे उनको बच्चे जो रिस्पेक्ट करते थे या जो जब भी उनकी बात सुनते थे, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये होता था कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो भी आपका नॉलेज होता था दैट यूज्ड टू बी एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज। सो पेरेंट्स ने 1980 से पहले या जो भी सिटीजन है उस समय, तो उन्होंने एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज गेन किया था। लेकिन आज के डेट में बाय वर्च्यू ऑफ टेक्नोलॉजी एवरीथिंग इज इन अ क्लिक ऑफ अ बटन। आप गूगल में जाइए, कुछ भी लिखिए और आपको हर चीज आपको मिल जाएगी। आप उसको 10-15 मिनट पढ़िए एंड प्रोबेबली यू कैन हैव अ मीनिंगफुल डिस्कशन टू अ पर्सन हु इज अ प्रोफेशनल। और टेक्नोलॉजी आज इतनी पावरफुल है कि एक फादर जो कि 40-45 ईयर्स ओल्ड है, वो कई बार अपना रिंगटोन कैसे चेंज करना है वो भूल जाता है, और बच्चा जो कि 6 साल का है वो एप्पल के मोबाइल का रिंगटोन चेंज कर देता है। और ये है पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। चौथा है जो चीज आज के बच्चों को अफेक्ट कर रही है वो है ट्रेडिशन। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जब भी एक जनरेशन और दूसरे जनरेशन में कभी भी टकरार होगी तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा जो कि पुरानी जनरेशन है वो कहेगी ये संस्कार है, और जो नई जनरेशन वो कहेगी ये अत्याचार है। और हमेशा जीत जो होगी वो नई जनरेशन की होगी। और इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 1829 से पहले इंडिया में एक बहुत ही बुरी प्रथा थी, बहुत ही दुखदायक प्रथा थी, और उस प्रथा का नाम था सती प्रथा। सती प्रथा में लोग लड़कियों को, छोटी छोटी बच्चियों तक को जिंदा जला दिया जाता था अपने हस्बैंड के साथ। सोचिए कितनी बुरी प्रथा थी। और उस वक्त राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजों से फाइट करके इस प्रथा को खत्म किया, और सती प्रथा हमेशा हमेशा के लिए उस वक्त खत्म हो गई। उसके बाद अभी भी भारत के कई देशों में घूंघट ओढ़ना पड़ता है स्त्रियों को, और कई स्त्रियां इसके अगेंस्ट अब काफी नए और बड़े शहरों में तो ये चेंज होता जा रहा है, लेकिन छोटे शहरों में अभी नहीं है। जो नई जनरेशन है वो हमेशा कहती है ये अत्याचार है, और जो पिछली जनरेशन है वो कहती है ये संस्कार है। लेकिन जीत किसकी होती है? जीत होती है नई जनरेशन की। और हमेशा ये जान के रखिएगा कि कोई भी दी फ्यूचर जनरेशन विल ऑलवेज हैव अ बेटर लाइफ। एंड फोर्थ इज टॉलरेंस। टॉलरेंस का ये एग्जांपल है कि आपको याद होगा कि जब आपके पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग पे जाते थे तो आपके फादर क्या कहते थे टीचर को? आपके फादर टीचर को कहते थे कि सर मार मार के सुधार देना, लेकिन इसको इंसान बना देना, और कोई चिंता मत करना। लेकिन आज के डेट में बच्चों के ऊपर आप हाथ नहीं उठा सकते, वो बहुत ही गलत चीज माना जाता है। और पहले के जमाने में 1980 या 1980 से पहले बच्चों के ऊपर हाथ उठाते थे पेरेंट्स भी और स्कूल में टीचर्स भी। और जब वो स्कूल में भी मार पड़ती थी और जब घरों में भी मार पड़ती थी तो क्या हो जाता था? बच्चों का टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता था। आज के बच्चे कुछ भी मांगते हैं तो उनको तुरंत मिल जाता है। तो लाइफ में जितना ज्यादा स्ट्रगल होता है उतना ज्यादा आपका टॉलरेंस लेवल बढ़ता है। और ये सारी चीजें
पहले के जमाने में अलग थी, आज के जमाने में अलग है। क्या आप सभी मेरे साथ हैं? अभी तक जितना मैंने बोला आपको समझ में आ रहा है? जरा जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए यस, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। जल्दी से प्लस का साइन दें। यस 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 यस, ओके, मेरे पास आ रहा है। अब हम आते हैं दूसरे स्लाइड पे। बस एक दो स्लाइड्स हैं जो कि थोड़ी सी थियोरेटिकल है, और उसके बाद सारा का सारा प्रैक्टिकल होगा, और आपको आज एक ऐसा एक्सपीरियंस होने वाला है जो आप लंबे समय तक याद रखेंगे। दूसरा जो इंसिडेंट हमारे बिहेवियर को शेप करता है वो है, जिंदगी ने हमें किस तरह के इंसिडेंट हमने देखे हैं, हमने झेले हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक दोस्त है, उस दोस्त का ये मानना है कि जिंदगी एक ही मिली है, और वो बहुत ही रैश ड्राइविंग करता है। उसका ये मानना है जिंदगी एक ही मिली है तो उसको खुल के जियो। और ये जो आपका दोस्त है ये बहुत ही रैश ड्राइविंग करता है, और ये जो रैश ड्राइविंग मन ही मन उसको पता है कि रैश ड्राइविंग करना अच्छी बात नहीं है, इसमें कोई एडवेंचर वाली बात नहीं है, लेकिन वो अपने इस बिहेवियर को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। आदमी का बिहेवियर, बच्चे का बिहेवियर, एडल्ट का बिहेवियर, किसी का भी बिहेवियर कब चेंज होता है? उसका बिहेवियर तभी चेंज होता है जब उसकी बिलीफ सिस्टम में चोट पहुंचती है, जब उसकी बिलीफ सिस्टम इस बात को उसको झंझोर के रख देता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। अब जो बंदा जो ये बिलीव करता था कि जिंदगी तो एक ही मिली है, तो और वो रैश ड्राइविंग करता था और बिना हेलमेट के चलाता था गाड़ी, रातों रात उसका बिलीफ सिस्टम चेंज हो सकता है। कब? जब उसको एक फोन कॉल आता है कि नमस्कार, मैं अपोलो हॉस्पिटल से बोल रही हूँ, और मुझे बताते हुए बेहद दुख हो रहा है कि आपका फ्रेंड रोहन आज एक बहुत ही बुरे दर्दनाक एक्सीडेंट का शिकार हो गया है। उसने हेलमेट नहीं पहन रखी थी, उसके इमरजेंसी कांटेक्ट में आपका नंबर था, आप प्लीज आए और उसको देखें और उसको सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करें। तो ये जो दोस्त है वो दौड़ दौड़ के जाएगा अपोलो हॉस्पिटल में, जाके फॉर्म भरेगा। फॉर्म भर के तो एक इंसिडेंट उसके लाइफ में हुआ, और बहुत ही इमोशनल स्टेट में वो जाके अपने दोस्त को देखता है, और जब दोस्त को देखता है आईसीयू में पड़े हुए और ऑक्सीजन मास्क लगे हुए, तो एक नया बिलीफ सिस्टम उसके घर में, उसके जहन में घर करता है। और वो बिलीफ सिस्टम क्या है? उसका बिलीफ सिस्टम अब ये है कि रैश ड्राइविंग इज रियली इंजूरियस टू हेल्थ। रैश ड्राइविंग में किसी की जान जा सकती है, किसी की हालत खराब हो सकती है। और अब ये जो नया बिलीफ सिस्टम है उसके नए बिहेवियर को जन्म देता है। दिस इज हाउ वी शेप बिहेवियर इन आवर लाइफ। डू यू एग्री विथ मी? यस नो प्लीज क्विकली जरा चैट बॉक्स में डालें। यस 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 करके थम्स अप करें ताकि मुझे समझ में आए। ओके, वेरी गुड। नाउ व्हाट इज एनएलपी? एनएलपी इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। और ये जो एनएलपी है, अगर आप एक 250 पेज की बुक पढ़ेंगे, उसमें जितना नॉलेज आपको मिलेगा या उस जो आप इम्प्लीमेंट करते हैं और आपको जो मिलता है, वो ही मैं आज आपको नेक्स्ट 45 मिनट्स में देने वाला हूँ। एनएलपी का मतलब बस आपको इन दो छोटे स्लाइड्स में मैं समझा रहा हूँ। एनएलपी इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो मीन्स इट्स द माइंड एंड हाउ वी थिंक. Linguistic is how we use the language and how it affects us. And programming means how we control our action to achieve our goals. So this is neuro-linguistic programming. Now, who are the people who have created NLP? Dr. Richard Bandler, who was an IT programmer, and Professor John Gruden, who was a linguistic expert. They have created NLP. Now, what I propose to do is, आप एज्यूम कीजिए कि आप के पास अभी 3 चेयर हैं। आपको ये एज्यूम करना है, अगर किसी के पास वास्तव में अभी जिस रूम में बैठे हैं 3 चेयर है तो इट वुड बी वेरी गुड। अगर नहीं भी बैठे हैं तो बस आपको ये एज्यूम करना है कि आपके पास 3 चेयर हैं। सबसे पहले आप एज्यूम कीजिए, आप अपनी आंखें बंद करेंगे। अब धीरे से आप सभी को पार्टिसिपेट करना है। धीरे से आप सभी को अपनी आंखों को बंद करना है, और आंखों को बंद करने के बाद आपको पेरेंट का चेयर में बैठना है, और ये अज्यूम करना है कि आपके जस्ट एडजेसेंट में जो दूसरी चेयर है उसमें आपका बेटा या आपकी बेटी बैठी हुई या बैठा हुआ है। आपको समझ में आ गया क्या करना है? आपको थोड़ी देर में अपनी आंखों को बंद करना है और ये अज्यूम करना है कि आपके सामने एक और चेयर है, और उस चेयर में आपका बेटा या आपकी बेटी बैठी हुई है। अब धीरे से आप आंखें बंद कीजिए, अज्यूम कीजिए कि आप एक चेयर के ऊपर बैठे हैं और दूसरे चेयर में आपका बेटा या बेटी बैठी हुई है। और इसके बाद आपको ये सोचना है कि ये जो पर्सन मेरे साथ बैठे हुए हैं,
इनके साथ मेरी जो रिलेशनशिप की क्वालिटी है वो क्या है? What is the quality of relationship I share with the person who is sitting right adjacent to me? जब मैं ऑफिस से आता हूं तो क्या उसे देख के मुझे सुकून, शांति का अनुभव होता है? मैं इस रिलेशनशिप में कैसा महसूस करती हूँ? क्या मैं धन्य महसूस करता हूँ उस ऊपर वाले का, उस भगवान का, जिसने मुझे इतने अच्छे बच्चे को पालने का सुअवसर प्रदान किया? वो कौन से चैलेंजेस हैं जो कभी कभी मुझे विक्टिम महसूस कराते हैं? उसका बार बार गुस्सा आना, उसका बड़ों से अत्यधिक बहस करना, उसका हमेशा परिवार के रूल को नकारना, दूसरों से निर्दयता से बोलना, झूठ बोलना, ब्रदर्स, सिस्टर्स, कजन्स के साथ चीजें ना शेयर करना, वो कौन सी चीजें हैं जिसके कारण मैं विक्टिम महसूस करती हूँ? क्या वो बिहेवियर है? क्या वो बिलीफ है या उसका वैल्यू सिस्टम है? क्या है? अब जरा कुछ देर तक इसको सोचिए, इन क्वेश्चंस का आंसर तलाशने की कोशिश कीजिए। और अब आंखों को बंद रखते हुए ये अज्यूम कीजिए कि अब आप पेरेंट्स के चेयर से उठ के चाइल्ड के चेयर में बैठ गए हैं, और ये जो दूसरा चेयर है, चाइल्ड का चेयर, इस चाइल्ड के चेयर में आप अज्यूम कीजिए कि आप वही चाइल्ड हैं जिस चाइल्ड को आप देख रहे थे। अज्यूम कीजिए कि आप उसकी बॉडी में समा चुके हैं, और अब आप यही सवाल जो आपने अपने से पूछा था, वही सवाल आप ये पूछिए कि ये जो सामने मेरे बैठे मेरे फादर या मदर हैं, इनके साथ मेरे रिलेशनशिप की क्वालिटी कैसी है? जब मेरे पेरेंट ऑफिस से घर आते हैं तो क्या उन्हें देख के मुझे खुशी, सुकून, शांति का अनुभव होता है? क्या उन्हें देख के मुझे प्रोटेक्शन का अनुभव होता है? इस रिलेशनशिप में मैं कैसा महसूस करती हूँ? क्या मैं धन्य महसूस करता हूँ कि मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स के घर में जन्म दिया? वो कौन से चैलेंजेस हैं जिनसे कभी कभी मैं विक्टिम महसूस करता हूँ? मेरे माता पिता मेरे साथ समय नहीं बिताते, वो मेरे साथ पार्क में घूमने नहीं जाते, वो मेरे पे कठिन नियम थोपते रहते हैं, वो हमेशा लैपटॉप के सामने बैठे होते हैं, वो मुझे अपने डिसीजन में केवल इन्फॉर्म करते हैं, मुझे अपने डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं करते, वो हमेशा मेरे सामने ही ड्रिंक या स्मोक करते रहते हैं, वो कभी कभी मेरे सामने आपत्तिजनक बात करते हैं। वो कौन सी चीज है जिससे मैं अपने पेरेंट के प्रति विक्टिम अनुभव करता हूँ? क्या उनका बिहेवियर है या बिलीव है? वो क्या है? अब कुछ देर इसमें रहिए और सोचिए। और अब धीरे से आंखों को बंद रखते हुए तीसरे चेयर पे आपको बैठना है। ये चेयर है ऑब्जर्वर का, ये चेयर है एक जज का, और इसमें आप बैठ के सोचिए, ये दोनों चाइल्ड और पेरेंट दोनों आपके सामने हैं, दी अदर यू और आपका चाइल्ड दोनों आपको आंखों के सामने दिख रहे हैं, और आप एक जज की पोजीशन में बैठ के देखिए कि इनके बीच की रिलेशनशिप की क्वालिटी क्या है, इस रिश्ते में ये दोनों आपस में कैसा अनुभव कर रहे हैं, वो कौन सी चुनौतियां हैं जिनका ये शिकार है। और अब ये जो ऑब्जर्वर है, जज हैं, ये धीरे से आके पेरेंट के कान में आके बोलेंगे कि ये चैलेंजेस हैं और इन चैलेंजेस को आप सुधारिए। एज ए पेरेंट एक्सपीरियंस कीजिए कि आपको वो सजेशन मिल रहे हैं और आप उसको एग्री कर रहे हैं। फिर ये ऑब्जर्वर धीरे से जाके चाइल्ड के कान में कहते हैं कि ये चैलेंजेस आपके पेरेंट्स फेस कर रहे हैं और इसमें आप अपने बिहेवियर को चेंज कीजिए, और देखिए आपका चाइल्ड सर हिलाते हुए उसको एक्सेप्ट कर रहा है। और 10 सेकंड के लिए अपनी आंखों को बंद ही रखिए और फिर अज्यूम कीजिए कि ये तीनों अलग अलग चेयर से उठ के आपके चेयर में आके बैठ गए हैं और आपने इन तीनों का रोल अदा कर लिया है।
थैंक यू। सो ये पहला एक्सरसाइज हमारा खत्म हुआ। आई होप कि इस एक्सरसाइज के बाद आपको कुछ नए इनपुट्स आए होंगे। जरा क्विकली अगर आपको कुछ नए इनपुट्स आए होंगे, जरा जल्दी से यस 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 लिखिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े और बाकी भी मैं एक्सरसाइज जल्दी जल्दी करा पाऊँ। थैंक यू, आपके मैसेजेस आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे। और अब हम आते हैं दूसरे स्लाइड पे। आपने कई बार सुना होगा, हम लोग कहते हैं कि ये फला बंदे के साथ इसका रैपो बड़ा अच्छा है, उसके ये पेरेंट्स में, बच्चों में रैपो बड़ा अच्छा है। ये रैपो होता क्या है, आज मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर एल्बर्ट मेहराबियन एक अमेरिकन टीचर थे और अर्मेनिया कंट्री को बिलोंग करते थे। डॉक्टर एल्बर्ट मेहराबियन ने काफी लंबे रिसर्च के बाद ये हमें सीख दी कि जो कम्युनिकेशन होता है वो 3 तरह का कम्युनिकेशन होता है, जिसमें कि 55% बॉडी मूवमेंट के जरिए होता है, 38% होता है टोन ऑफ वॉइस और केवल 7% होता है वर्ड से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे याद है, मैं अपने दोस्त के साथ एक बार मैं अपनी मिसेस के साथ एक बार पिक्चर देखने जा रहा था, तभी मेरा एक पुराना दोस्त आया और उसको देख के मैं बड़ा खुश हुआ था क्योंकि पुराना दोस्त था, काफी दिनों बाद मिला था। तो उसको मैंने बोला, वो अपने फैमिली के साथ था, भैया कहाँ से आ रहा है? और वो कहता है मूवी देख के आ रहा हूँ। तो उसका ये कहना था कि मूवी देख के आ रहा हूँ, तो हमें क्या लगा कि मेरी मिसेस ने कहा कि शायद उनको मूवी पसंद नहीं है इसलिए ये ऐसा कह रहे हैं। मैंने कहा नहीं, इनका बॉडी लैंग्वेज ही ऐसा है, ये हमेशा इसी तरह से बात करते हैं। तो हम किसी से कैसे बात करते हैं वो टोटली डिपेंड करता है हमारी बॉडी मूवमेंट, हमारा टोन ऑफ वॉइस और हमारे वर्ड्स जो हम शेयर कर रहे हैं। अगर आप रैपो अच्छा बिल्ड करना चाहते हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ, तो ये एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जिसको हम कहते हैं मिररिंग। मिररिंग में क्या होता है कि मान लीजिए आपका बच्चा आपके सामने बैठा हुआ है जस्ट अभी इसी वक्त, तो आपका बच्चा मान लीजिए वो जो भी हरकत कर रहा है, अगर वो अपनी राइट लेग को क्रॉस करके बैठा हुआ है पालती मार के, तो आप अपनी लेफ्ट लेग को क्रॉस करके बैठिए। अगर वो अपना राइट हैंड गाल में देके इस तरह से बैठा हुआ है, तो आप अपना लेफ्ट हैंड गाल में देके इस तरह से बैठिए। कहने का मतलब ये है कि वो जो भी कर रहा है उसका मिरर इमेज आप क्रिएट करने की कोशिश कीजिए ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ एनी सॉर्ट। और आपका बच्चा अगर बातचीत में कुछ ऐसे वर्ड यूज करता है जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज करता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है कि मैं जब किसी से बात करता था तो मैं बीच बीच में बोलता था यस जेंटलमैन टेल मी जेंटलमैन, तो मेरे फादर भी इस तरह से बोलते थे यस जेंटलमैन टेल मी जेंटलमैन, तो वो उन्होंने वो वर्ड मुझसे पिक कर लिया था। तो अगर आपका बच्चे का कोई ऐसा एक वर्ड है जो कि वो बहुत ही ऑफन बोलता है, उसको अगर आप अपने वोकैबुलरी में ऐड कर लेंगे तो आपका रैपो बहुत ही जल्दी बिल्ड हो जाएगा। और जब भी आप अपने बच्चे के साथ मिररिंग करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको मिररिंग करनी, आपको मैचिंग नहीं करनी। मैचिंग क्या होता है? मैचिंग का मतलब अगर बच्चा खांस रहा है तो आप भी खांस रहे हैं, बच्चा चीख रहा है तो आप भी चीख रहे हैं, वो नहीं करना। आपको मिररिंग करना है उसके हाव भाव, उसके हैंड मूवमेंट और जेस्चर पोस्चर पे। जब आप ऐसा करते हैं तो थोड़ी देर में आपका बच्चा सबकॉन्शियसली वो वैसी हरकत करने लग जाता है जो कि आप कर रहे होते हैं। और ये आप करके देखिएगा कभी, तो आप देखेंगे इससे इतना बढ़िया मिररिंग आपका रैपो बिल्ड हो जाएगा। और रैपो बिल्ड होने से जो भी आप कहेंगे वो बहुत ही जल्दी आपके बच्चे को कम्युनिकेट होगा और वो डीपर लेवल तक उसको उसकी मीनिंग समझ में आ जाएगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसमें आते हैं टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड स्टेट। अब ये एनएलपी के लैंग्वेज में स्टेट जो वर्ड है इसको हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं मूड। आपने कई समय सुना होगा हम कहते हैं यार आज बॉस का मूड अच्छा नहीं है, या यार आज मिसेस का मूड अच्छा नहीं है, या आज तो तेरी मम्मी बड़े गुस्से में है, मूड खराब है क्या। ये हम अक्सर कहा करते हैं। उसी को एनएलपी में कहा जाता है स्टेट। स्टेट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है रिसोर्सफुल स्टेट और एक होता है अनरिसोर्सफुल स्टेट। रिसोर्सफुल स्टेट होता है हैप्पीनेस, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्फिडेंस, जॉय, फ्लेक्सिबिलिटी, फीलिंग गुड वाली फैक्टर आती है, ये होती है रिसोर्सफुल स्टेट। और अनरिसोर्सफुल स्टेट होता है सैडनेस, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, डिप्रेशन। और रिसोर्सफुल स्टेट और अनरिसोर्सफुल स्टेट हमारे खुद के बनाए हुए हैं और इनमें से हम बाहर निकल सकते हैं कैसे? चुटकी बजाते हुए, चुटकी में हम बाहर निकल सकते हैं। अब मैं आपको बहुत ही एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके घर में एक सिस्टर है या आपकी डॉटर है या आपकी बहन है जिसकी अभी शादी फिक्स हुई है। एक सिचुएशन आपको दे रहा हूँ और ये अपने ऑफिस से आती है थकी हारी, ठीक है, उसके ऑफिस ने उसको कैब प्रोवाइड की है तो कैब घर तक छोड़ के जाती है। उसका आज दिन अच्छा नहीं था, वो बड़े ही दुखी मन से आती है
और आके अपने कमरे में अपना पर्स रखती है और ये आईने के सामने जाके बैठ जाती है, और उसी वक्त बहुत ही आपको देख के ही पता चल रहा है बहुत ही डिमोटिवेटेड है, डिप्रेस्ड है। उसी वक्त उसका फियांसे का फोन आता है कि अरे क्या कर रहे हो, चलो डिनर करने चलते हैं। एकदम से उसका मूड चेंज हो जाता है, वो डिप्रेस्ड डिसअपॉइंटमेंट वाला लुक एकदम से ब्राइट हो जाता है, और आईने के सामने बैठी वो चुपचाप देख रही होती है, और अब वो कंघी लेती है, अपने आप को बाल संवारती है, कुछ सेंट परफ्यूम लगाती है, आंखों ये सर में बिंदी लगा के, चूड़ी उड़ी पहन के, और बिल्कुल तैयार होके विद इन 5 मिनट्स वो निकल पड़ती है। क्या हुआ, विद इन 5 मिनट्स एक कॉल से वो अनरिसोर्सफुल स्टेट से, जो कि सैडनेस, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया वाला था, वो मूव कर गई हैप्पीनेस, कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, जॉय वाले स्टेट में। और यही होता है कि चुटकी बजाते जब भी आप सैडनेस महसूस करें, आपको लगे कि यार ये कोविड-19 सिचुएशन कितना डल है, तुरंत उसमें से अपने दिमाग को हटा के आप अपने काम पे फोकस करें, बिजनेस को बढ़ाने के लिए फोकस करें, कल के लिए फोकस करें, आने वाले प्रमोशन के बारे में सोचें, और बच्चों को भी इसी तरह का बनाएं। यहाँ मैं आपको बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में एक फेस देख पा रहे हैं। आप में से कोई ये बता सकता है मुझे ये कौन है? कोई अगर बता सके ये कौन से क्रिकेटर है? मैं आपको बताता हूँ, इनका नाम है ई बालाजी। ई बालाजी ये मीडियम पेसर बॉलर थे। 2002 में इन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम में ज्वाइन किया था, और इनको असली जो नाम मिला वो मिला 2004 में, और 2004 में पाकिस्तान की सीरीज में ये गए। और आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान में जब 2004 में ये गए, 5 मैचों की सीरीज थी। 5 मैचों में इंडिया 2 मैच जीत चुका था, पाकिस्तान 2 मैच जीत चुका था, और लास्ट जो वनडे इंटरनेशनल था उसमें इन्होंने जिताने की बहुत बड़ी भूमिका अदा की, और इन्होंने उस पूरे सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लिए, और इन्होंने नंबर 10 पे बैटिंग करने आते थे। उसके बावजूद भी इन्होंने चौके छक्के खूब लगाए, अंधाधुन इन्होंने बैट घुमाया इधर उधर, और बहुत ही चौके छक्के लगे। तो क्या हुआ, आप विश्वास नहीं करेंगे कि पाकिस्तान में इनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि सचिन, युवराज और बड़े बड़े मोहम्मद कैफ जैसे प्लेयर को भी दरकिनार करके पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स ने केवल इनका इंटरव्यू करना पसंद किया। क्यों? बाद में साइकोलॉजिस्ट और रिसर्चर ने रिसर्च किया, तो उन्होंने ये देखा कि जब भी वो ई बालाजी को देखते तो वो बहुत ही हाई रिसोर्सफुल स्टेट पे पहुंच जाते। कैसे? क्योंकि जब भी पाकिस्तान की जनता को भी चाहिए था कि वो मतलब एक मैच हो जिसमें अच्छा टोटल हो, चौके छक्के पड़े, और आगे के बैट्समैन नहीं कर रहे थे, लेकिन जब भी ये आते थे ये अंधाधुन बैट घुमा देते थे, और कभी बॉलर के सर के ऊपर से 4, कभी 6, और कभी मतलब जब भी एक्साइटमेंट वाला माहौल आता तो स्क्रीन में इनका फेस आता। जब भी अचानक कोई बोल्ड होता तो विकेट गिरता और इनका स्क्रीन में फेस आता, तो लोग इनके चेहरा जैसे ही देखते तो एक हाई रिसोर्सफुल स्टेट में पहुंच जाते। सो ये मैजिक था ई बालाजी का, और इस मैजिक के ऊपर आप YouTube में जाके सर्च करें, आपको कई सारे वीडियो मिलेंगे जिसमें कहा है कि किस तरह से लोग अनरिसोर्सफुल स्टेट से रिसोर्सफुल स्टेट में पहुंच जाते हैं। अब मान लीजिए आपका बच्चा है, वो कहता है कि पापा आई फियर ऑफ मैथ्स, कोई कहता है कि आई मे फियर ऑफ केमिस्ट्री, किसी को ज्योग्राफी, किसी को अकाउंटेंसी से फियर हो सकता है, किसी सब्जेक्ट से फियर हो सकता है। तो आप ये एक्सरसाइज करें। इस एक्सरसाइज में आपको ये करना है कि अपने बच्चे को बोलना है, बेटा अपनी आंखें बंद करो और ये एज्यूम करो, पुट योर स्पाइन स्ट्रेट, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करो, थ्रो बैक योरसेल्फ अ लिटिल बिट, आंखें बंद करो और ये सोचो that you are fully confident about maths. Now show this confidence on your face. Take a deep breath. Now feel that as if you are fully confident of maths. Show this on your face also. Bright up your face, smile a little bit. Now that you are feeling confident, hold this position. Visualize that you are scoring very good marks, and visualize that your teacher is appreciating you. जस्ट ये 2-3 मिनट का आपको एक्सरसाइज करना है, और आप देखेंगे कि आपका चाइल्ड एक अनरिसोर्सफुल स्टेट से रिसोर्सफुल स्टेट में आ जाएगा। सो टेक योर चाइल्ड्स रिसोर्सफुल स्टेट इनटू एक्शन। फ्रॉम दिस नाउ लेट्स मूव क्विकली टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज डेवलप योर चाइल्ड्स लर्निंग मोड। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, इस दुनिया में, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, उनके पास ये 5 सेंसरी
चीजें हैं। Seeing, that is visual sense, auditory sense, kinesthetic sense which is feeling, then smell जिसको कहते हैं occular sense, और फिफ्थ को कहते हैं टेस्ट, गस्टफेरी सेंस। लेकिन आमतौर पे अमूमन हम में से जितने भी लोग हैं वो इन तीन में से एक सेंस के धनी होते हैं, या तो विजुअल सेंस हाई होता है, या ऑडिटरी सेंस हाई होता है, या फीलिंग वाला सेंस हाई होता है। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको देता हूं और आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कि ये वास्तव में होता है। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि एक ही इंसिडेंट को 3 अलग अलग लोग देखेंगे और 3 अलग अलग लोग उसको 3 अलग अलग तरीकों से नरेट करते हैं, और हम में से गलती हमारी यही हो जाती है कि हम यही नहीं समझ पाते कि हमारे बच्चे का कौन सा सेंस सबसे ज्यादा डेवलप, क्या उसका विजुअल सेंस सबसे ज्यादा डेवलप है, क्या उसका ऑडिटरी सेंस है, या उसका काइनेस्थेटिक सेंस है। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा आज घर आता है और अनफॉर्चुनेटली उसने रास्ते में एक एक्सीडेंट देखा होता है। सो अगर आपका बच्चा विजुअल सेंस का धनी है तो वो आपको आके कुछ ऐसा नरेट करेगा कि पापा मम्मी आज मैं बाहर से आ रहा था तो मैं अचानक से देखा कि एक गाड़ी दौड़ती हुई आ रही थी और एक बाइक से जाके टकराई, और जो बाइक वाला बंदा था वो एकदम छिटक के बहुत दूर गिरा पापा, एकदम देखते नहीं बन रहा था, बहुत ही दुख लगा देख के। ये विजुअल सेंस वाला बच्चा कहेगा। जो ऑडिटरी बच्चा है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, वो क्या कैसे कहेगा, इस चीज को इस तरह से कुछ नरेट करेगा कि पापा अभी मैं आ रहा था, मैंने देखा कि एक एक्सीडेंट हुआ, और एक जब एक्सीडेंट हुआ तो दम से आवाज आई, एक ट्रक आ रही थी, एक बाइक आ रहा था और दम से आवाज आई, और आवाज आने के बाद तुरंत मैंने सुना लोग कह रहे थे बचाओ बचाओ इस लड़के को बचा लो, और एकदम से भीड़ आ गई और सबने कहा इसको बचाओ, अरे भाई कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, अरे कोई गाड़ी में बैठाओ, ये सब आवाज आ रही थी। पापा मुझे तो बिल्कुल देखा नहीं है। और जो बंदा आपका फीलिंग वाला है, काइनेस्थेटिक जो सेंस जिसका डोमिनेंट है, वो कुछ इस तरह से आपको बताएगा कि पापा अभी मैंने एक एक्सीडेंट देखा और आप विश्वास नहीं करेंगे पापा मेरी तो रूह मेरी कांप गई। वो एक्सीडेंट में मैंने ये महसूस किया कि गाड़ियां आके टकराई और उसके बाद लोगों ने कहा बचाओ बचाओ, पूरी तरह से लहूलुहान एकदम खून खून हो गया था पापा, कोई बचाने नहीं आया था। आज के लोगों में कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पीपल आर नॉट सेंसिटिव एनीमोर। आई डोंट नो हाउ पीपल आर सो इनसेंसिटिव एंड केयरिंग। आपने देखा 3 अलग अलग बच्चे हैं, 3 अलग अलग बच्चे अलग अलग ढंग से बात कर रहे हैं। अब आपका बच्चा इसमें से क्या है, कौन सा है, वो मैं आपको बताऊंगा अगले स्लाइड में। लेकिन आप अपने बच्चे के सेंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप पहले एक एक्सरसाइज ये कीजिए कि आपके बच्चे के विजुअल सेंस को बढ़ाने के लिए आप एक टेबल के ऊपर 5 चीजों को रखिए, पेन, पेंसिल, मोबाइल, पेपर वेट एंड पेंसिल शार्पनर, और अपने बेटे को बोलिए या बेटी को बोलिए कि बेटा इसको एक बार देख लो ये किस सीरियल ऑर्डर में है, और अब अपनी आंखें बंद करो, और आंखें बंद करके आप इसके सीरियल ऑर्डर को इधर उधर पलट दीजिए, और फिर बच्चे को बोलिए अब आप अपनी आंखें खोलो और इसको वापस उसी सीरियल ऑर्डर में अरेंज करो जिस सीरियल ऑर्डर में तुमने देखा था। और हो सकता है आपका बच्चा उसी सीरियल ऑर्डर में अरेंज कर दे और हो सकता है ना करे, लेकिन आप धीरे धीरे जब ये एक्सरसाइज बार बार करते हैं तो उसका विजुअल सेंस इंप्रूव हो जाता है, और विजुअल सेंस इंप्रूव होने से उसकी लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी जो है वो इंप्रूव हो जाती है। अब आते हैं दूसरे एक्सरसाइज में। दूसरा एक्सरसाइज है ऑडिटरी सेंस का एक्सरसाइज। आपके किसी का माइक ऑन है? कैन यू प्लीज स्विच ऑफ द माइक प्लीज? Vivo 1933। या मैडम आप स्विच ऑफ कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, होस्ट है, आप कर सकते हैं। होस्ट के पास राइट होता है। दूसरा एक्सरसाइज है ऑडिटरी सेंस का एक्सरसाइज। सर आई थिंक यू कैन डू इट। दूसरा है ऑडिटरी सेंस का। ऑडिटरी सेंस में आप अपने बच्चों के ऑडिटरी स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्नैपिंग ऑफ फिंगर, मतलब चुटकी बजा के आप excuse me, Nilanjan, I'm just muting all. You will have to unmute and speak. Okay. Please go ahead. Okay. आप अपने बच्चों के ऑडिटरी सेंस को इंप्रूव करने के लिए एक्सरसाइज करें। उनको कहें कि बेटा आंखें खोलो और देखो मैं चुटकी इस तरह से बजाता हूँ, या आप किसी यूटेंसिल को भी ले सकते हैं और यूटेंसिल में एक चम्मच से आप उसको बजा सकते हैं, और मम्मी को कहें कि मम्मी चुटकी ऐसे बजाएगी, या मम्मी एक दूसरे यूटेंसिल से
उसको साउंड दे सकती है। और फिर उसको कहें कि अब आप आंखें बंद करो और सुनने की कोशिश करो और बताओ कि कौन सा यूटेंसिल मैं बजा रहा हूँ या कौन सी चुटकी मैं बजा रहा हूँ, और मम्मी ये कह सकती है कि मेरी चुटकी की आवाज कैसी है ये बताओ, या मैं कौन सा यूटेंसिल बजा रहा हूँ ये बताओ। धीरे धीरे जब आप ये अपने बच्चे के साथ ये एक्सरसाइज करते हैं, खेल ही खेल में आपके बच्चे के जो ऑडिटरी सेंस है वो डेवलप हो जाते हैं, और वो सुन के काफी कुछ बता सकते हैं। वो आपके पाँव के कदम सुन के बता पाएंगे कि ये पाँव के कदम किसके हैं, मम्मी के हैं, पापा के हैं। उनके ऑडिटरी सेंस डेवलप हो जाएंगे। और तीसरा जो है वो है काइनेस्थेटिक सेंस। काइनेस्थेटिक सेंस में फीलिंग के जरिए आप चीजों को समझते हैं। तो फीलिंग के जरिए आप एक काम करें, आप एक साथ 4 अलग अलग छोटे छोटे कपड़े लें, सिल्क का क्लॉथ, कॉटन फैब्रिक, टेरिकॉट और जूट, और बच्चे को पहले खुली आंखों से उसको टच कराएं, फील कराएं कि बेटा देखो ये सिल्क का क्लॉथ है, बेटा देखो ये फैब्रिक है, ये टेरिकॉट है, ये जूट है। और फिर उसको आंखें बंद करने बोले, और फिर उसको बोलें कि अब मैं ये कपड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ, उसको टच करके मुझे बताओ कि क्या ये जूट है, टेरिकॉट है, कॉटन है और सिल्क है। और जब आपका बेटा ये अलग अलग फैब्रिक को टच करके बताएगा, उसके जब वो फील करेगा उसके टेक्सचर को, जब वो फील करेगा उसके स्मूथनेस को, तो उसका काइनेस्थेटिक, उसका जो फीलिंग वाला सेंस है वो डेवलप हो जाएगा। सो इन तीनों एक्सरसाइज से आपके बच्चे के तीनों मोड्स, सीइंग दैट इज विजुअल सेंस, ऑडिटरी सेंस और काइनेस्थेटिक सेंस इंप्रूव हो जाएंगे। अब हम आते हैं दूसरे टेक्निक पे। अब ये देखिए, बड़े ध्यान से देखिए इस स्क्रीन को, आपके सामने जो स्क्रीन है, आपका बच्चा कौन से सेंस का धनी है? क्या उसका विजुअल सेंस धनी है, या ऑडिटरी है, या काइनेस्थेटिक है? उसको देखने के लिए जब आप अपने बच्चे से बात करते हैं तो उसके आंखों पे बड़ा गौर से देखिएगा कि उसकी आंखें कैसे मूवमेंट करती हैं। मान लीजिए आपके बच्चे को आपने एक क्वेश्चन पूछा कि बेटा बताओ कल तुमने कौन सा ड्रेस पहना था, तो अगर उसका जो आंखें हैं वो राइट की तरफ, ऊपर की तरफ चला जाता है, सो उसका मतलब है कि वो अब उस विजुअल को इमेजिन करने की कोशिश कर रहा है कि कल उसने क्या पहना था। वो इमेजिन करने की कोशिश कर रहा है कि कल उसने रेड पहना था। और हो सकता है आपका बच्चा तुरंत बता दे कि पापा मुझे याद नहीं। तो फिर अगर आप उसको ये कहते हैं कि क्यों, कल तुमने रेड नहीं पहना था, और अगर आप देखते हैं कि आपका बच्चा ये क्वेश्चन पूछते ही उसका आंखें लेफ्ट की तरफ ऊपर हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो पिक्चर को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। आपने जो बोला कि क्या तुमने रेड नहीं पहना था, तो वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है उस पिक्चर को और अपने आप को रेड कलर के शर्ट में इमेजिन करके देखने की कोशिश कर रहा है। अगर आपका बच्चा राइट या लेफ्ट की तरफ आंखों को ऊपर करता है इस तरह के क्वेश्चन पूछने पे, तो वो विजुअल सेंस का धनी है। अगर आपने उससे ये बोला कि बेटे याद है तुम्हें जब तुम फर्स्ट आए थे तो तुम्हारे टीचर ने तुम्हें क्या कहा था, तो अगर वो ऑडिटरी सेंस का बंदा है तो वो उसकी आंखें अपने कान के तरफ इस तरफ से जाएंगी और वो सोचेगा, और वो कान के तरफ से वो सुनने की कोशिश कर रहा है कि हाँ पापा, मैडम ने कहा था कीप इट अप, आई एम प्राउड ऑफ यू। और अगर वो कहता है कि पापा मुझे याद नहीं, और फिर अगर आप उसको कहते हैं कि तो उन्होंने कहा था कीप इट अप बेटा, तो वो कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेगा और वो अपनी आंखों को लेफ्ट की तरफ लेके जाएगा। आप समझ जाएंगे कि आपका बच्चा ऑडिटरी किस्म का बच्चा है। सिमिलरली अगर आपका बच्चा फीलिंग वाला बच्चा है तो वो लेफ्ट की तरफ नीचे देखेगा। अगर आप बोलेंगे कि जब तुम फर्स्ट आए थे और तुम्हें वो प्राइज मिला था कैसा फील किया था तुमने, तो वो अपनी आंखों को लेफ्ट की तरफ, नीचे की तरफ ले जाएगा और आप फील करेंगे, आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि वो फीलिंग के जरिए वो उस समय वो जिस सिचुएशन में था उसको सोचने की कोशिश कर रहा है और वो फीलिंग वाला बच्चा है आपका। सो ये टेक्निक्स हैं आपके बच्चे के प्राइमरी मोड्स को जानने के लिए। एक बार फिर इसको हम टेबुलर फॉर्मेट में देखते हैं। अगर आपका बच्चा विजुअल डोमिनेटिंग है तो उसकी आंखें जो है वो लेफ्ट या राइट की तरफ अप हो जाएंगी, उसकी ब्रेथ सैलो हो जाएगी, लिटिल डीप होगी, और स्पीच उसकी फास्ट होगी विथ हाई वॉल्यूम। और आपको नया पैटर्न क्या फॉलो करना है, आपको फास्ट बात करनी है विथ हाई वॉल्यूम, और आपको इस तरह के वर्ड्स यूज करने हैं, सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू लेट यू नो। आपको इस तरह से सी और लुक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब होता क्या है कि हमारा जो बच्चा है वो कई बार होता है ऑडिटरी किस्म का बच्चा,
ठीक है, और उसको अगर उसके फादर हैं खुद विजुअल डोमिनेटिंग, सो ही विल यूज दिस सेंटेंस लाइक दिस, सी लुक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आप देखेंगे, आपके बॉस को देखेंगे, आपके सबऑर्डिनेट को देखेंगे, जो जिस सेंस का धनी होता है वो उसी वर्ड को बोलता है। वो योर बॉस में टेल यू शो मी व्हाट यू हैव डन, शो मी व्हाट यू हैव डन। तो शो मी व्हाट यू हैव डन का क्या मतलब है? वो बार बार आई हैव नॉट सीन एनीथिंग हैपनिंग, सो वो बार बार शो मी, सी, वो इसलिए बोल रहा है बिकॉज ही हिमसेल्फ इज अ विजुअल डोमिनेटिंग पर्सन। और कई बार ऐसा होता है कि आपका बेटा जो है वो एक ऑडिटरी किस्म का बंदा है, जो अपने बातों में बार बार ऐसा बोलता होगा कि आई हैव नॉट हर्ड एनीथिंग लाइक दिस, मैंने तो कभी नहीं सुना, मुझे तो किसी ने नहीं बोला, मैंने तो कभी, मुझे तो आपने कभी पहले नहीं बताया, मुझे तो पहले कभी नहीं बताया। और अगर वो इस तरह के वर्ड यूज करता है, लिसन, हियर, बताना, सुनना, तो आप समझ सकते हैं कि आपका बच्चा ऑडिटरी डोमिनेटिंग बच्चा है। ऐसा बच्चा अपनी आंखों को, जब भी आप उसे किसी क्वेश्चन को पूछेंगे, तो टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट ईयर डाउन लेफ्ट की तरफ देखता है, और काइनेस्थेटिक अगर होता है तो वो राइट डाउन की तरफ देखता है, और उसकी ब्रीदिंग जो है वो स्टोमक से आती है। और वो आप सुनेंगे कि वो अपने बातों में ऐसे यूज कर कहता है कि फील व्हाट आई एम सेइंग, और आप महसूस कीजिए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, महसूस कीजिए। आपने कई बार देखा होगा कि मान लीजिए आपकी वाइफ है, और आपकी वाइफ आपसे कहती है कि हाँ, आप अपने वाइफ के लिए एनिवर्सरी में एक बढ़िया सा उसको ईयरिंग ला के देखते हैं, और आप उसको कहते हैं कि लुक व्हाट आई हैव बॉट फॉर यू, लुक व्हाट आई हैव बॉट फॉर यू, व्हाई? बिकॉज यू आर अ विजुअल डोमिनेटिंग पर्सन। और आपकी मिसेस उसको देखती है और वो उसको थैंक यू बोल के अलमारी में रख देती है, और वो आपसे अक्सर कहती है कि तुमने तो आज हैप्पी एनिवर्सरी भी मुझे नहीं बोला। और आपको लगता है कि यार मैंने तो उसको आके एनिवर्सरी का गिफ्ट दिया, और वो मुझको कह रही है कि तुमने हैप्पी एनिवर्सरी भी नहीं बोला। व्हाई? बिकॉज शी इज अ ऑडिटरी डोमिनेटिंग पर्सन। उनको सुनना अच्छा लगता है, और आप उनको दिखा रहे हैं चीज, तो दिखाने से काम नहीं होगा, आपको उनको सुनाना पड़ेगा। तो ये आप अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, अपने बॉस के साथ इसको आप देख सकते हैं। आप इन चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, और आप समझ सकते हैं कि वो कौन सा डोमिनेटिंग पर्सन है। और जैसे ही आप उनके हिसाब से अपनी वोकेबुलरी को चेंज कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि उनके साथ आपका बहुत ही जबरदस्त रैपो बिल्ड हो जाएगा। क्या अभी तक आपको समझ में आ रहा है? जरा जल्दी से यस यस करें ताकि मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है। क्विकली चैट बॉक्स में जाके यस करें। ओके, वेरी गुड। नाउ रिवॉर्ड योर चाइल्ड्स पॉजिटिव बिहेवियर। अब रिवॉर्ड योर चाइल्ड्स पॉजिटिव बिहेवियर में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपने हमेशा ये अनुभव किया होगा कि जब भी आपके घर में एक छोटा बच्चा है, दादा दादी सब हैं घर में, आप बच्चे को गोदी में कब लेते हैं? ज्यादातर केस में मैं कहता हूँ बच्चे को गोदी में तब लेते हैं जब वो चुपचाप आराम से एक जगह अपने खिलौने के साथ खेल रहा होता है, या आप गोदी में उसको तब लेते हैं जब वो रोता है। और जैसे ही आप देखेंगे कि बच्चा रो रहा है, तुरंत अले ले 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 करके पापा भी चले जाते हैं, दादा भी चले जाते हैं, दादी भी चले जाते हैं, और फिर हम उससे गोदी में ले लेते हैं। और धीरे धीरे क्या हो जाता है, धीरे धीरे जो बच्चे होते हैं उनका दिमाग इतना तेज होता है, वो समझ जाते हैं, दे आर अटेंशन सीकर्स। उनको समझ में आ जाता है कि अगर मुझे अटेंशन लेना है अपने फादर का, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का, तो मुझे रोना पड़ेगा। और फिर आपने ही उसकी ये हैबिट करवा दी है, और अब वो अटेंशन के लिए रोता है, और फिर आप कहते हैं यार पता नहीं मेरा बच्चा, मेरा पोता इतना रोता क्यों है? Because you are responsible, because you are rewarding a wrong and inappropriate behavior of your child. Now what is the positive behavior, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल आपका जो चाइल्ड है या आपका पोता है वो ब्रश करना नहीं चाहता। अब आप जान गए हैं कि वो विजुअली डोमिनेटिंग है या नहीं। तो अगर आपका बच्चा विजुअली डोमिनेटिंग है तो आप उसको कहें जब वो ब्रश कर ले, शो मी योर, हाँ, सो जैसे ही ब्रश कर लेता है और आपको दिखाता है कि पापा पापा मैंने ब्रश कर लिया, देन यू शो योर शाइनिंग फेस ऑफ सरप्राइज। और वो जो शाइनिंग फेस ऑफ सरप्राइज है, ही और शी विल लव दैट। एंड देन अगर वो ऑडिटरी डोमिनेटिंग है, देन आप उसको सुनाएं, उसको बोले वाओ यू लुक वंडरफुल विद दिस शाइनिंग टीथ एंड आई विल सी यू ब्रश द टीथ इन इवनिंग ऑल्सो। सो आपने उसको एक मैसेज दे दिया कि आप अभी तो मैं खुश हुई, और इवनिंग में फिर से तुम करोगे, देन आई विल बी हैप्पी अगेन। सो वो बार बार अच्छी चीजें करेगा, क्योंकि वो बार बार आपसे अप्रिशिएशन सुनना चाहेगा।
और तीसरा है, अगर वो काइनेस्थेटिक डोमिनेटिंग है तो उसको आप एक हाई फाई या उसको एक हक दें, और जैसे ही आप उसको गले मिलेंगे या हाई फाई करेंगे, so he will appreciate that and he will keep on repeating those positive behavior. इसके बाद हम आते हैं, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सो आई एम मूविंग टू सम क्विकली टू सम स्लाइड्स. डिजाइन पॉजिटिव कमांड्स. आप देखते हैं कई बार हम अपने बच्चों को कहते हैं कि इस तरह के नेगेटिव कमांड हम यूज करते हैं. डोंट गो आउटसाइड, डोंट वॉच टीवी, डोंट गेट एंग्री, डोंट फॉरगेट टू वर्क हार्ड, डोंट बी स्टूपिड, डोंट गो आउट, कोविड-19 वायरस में कॉज सिकनेस. हम डोंट, नो, 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 नो इस तरह के वर्ड यूज करते हैं, लेकिन आपको और हमें ये पता होना चाहिए कि नो का हमारे दिमाग में कोई पिक्चर नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, जब भी मैं आपको कहूं ताजमहल, तो आपके दिमाग में एक ताजमहल का पिक्चर आ गया. अगर मैं आपको कहूं एलिफेंट, आपके दिमाग में तुरंत एक एलिफेंट का पिक्चर आता है. अगर मैं आपको कहूं एलिफेंट विद अ गम बूट, तुरंत आपके दिमाग में एक एलिफेंट का पिक्चर आ रहा है, और साथ में आप देख रहे हैं एलिफेंट को गमबूट पहन के. लेकिन जब मैं आपको नो कहता हूं तो नो का आपके दिमाग में कोई पिक्चर नहीं है, और आपके नो कहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता. आपका बच्चा वही चीज बार बार करता रहता है, और वो एक चीज समझ जाता है कि पापा के सामने ये चीज नहीं करना है, पापा के सामने आउटसाइड नहीं जाना है, पापा के सामने टीवी नहीं देखना है, पापा के सामने एंग्री नहीं होना है. जब पापा नहीं होंगे तब मैं ये सब कर सकता हूँ. सो उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ. नाउ आपको वही कमांड को चेंज करना है, और आपको पॉजिटिव डोंट और नो को अपने वोकेबुलरी से हटा दीजिए. उसके बदले पॉजिटिव सेंटेंस बोलिए. फॉर एग्जांपल बोलिए, डोंट गो आउटसाइड की जगह स्टे इनसाइड. डोंट वॉच टीवी, डोंट वॉच टीवी आप जैसे ही बोलते हैं व्हाट शुड आई डू, उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, तो उसका आंसर आप दीजिए स्टडी और प्ले मोनोपोली. डोंट गेट एंग्री की जगह बोलिए स्टे काम. ऑलवेज वर्क हार्ड, डोंट बी स्टूपिड की जगह बोलिए बी इंटेलिजेंट, बुद्धिमान बनो. डोंट गो आउट, उसकी जगह आप बोलिए स्टे इनसाइड एंड यू विल हैव अ बेटर हेल्थ. इस तरह से पॉजिटिव कमांड्स आप दीजिए, और आप देखेंगे आप अपने जैसी वोकेबुलरी में नो और डोंट को हटा देंगे, उसके बदले पॉजिटिव फ्रेम सेंटेंस बताएंगे, तो आपका बच्चा इंप्रूव करेगा. इसके बाद हम आते हैं आपके चाइल्ड के पेनफुल मेमोरी को हम किस तरह से इरेज कर सकते हैं, उसके बारे में अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे. अब इस एक्सरसाइज में आपको ये करना है कि हम सभी की जिंदगी में ऐसा सिचुएशन जरूर आता है जब जो हमारे लिए बड़ा ही पेनफुल है. कभी हमारे साथ कुछ बुरा हुआ होता है, कभी हमने किसी के साथ बुरा किया होता है, कभी अपने पेरेंट्स के साथ, किसी टीचर के साथ, किसी बॉस के साथ, किसी कोलीग के साथ, कभी न कभी हमने कुछ कड़े शब्द बोल दिए होते हैं, या ऐसी कोई चीज जो हमें ठेस पहुंचाती है. या कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अगर जिंदगी ने मुझे एक मौका दिया होता तो मैं वापस जाता और अपनी उस गलती को मैं सुधार लेता. अगर आपकी जिंदगी में कभी भी ऐसा कोई भी वाकया हुआ है, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए भी उतना ही काम करेगी जितने आपके बच्चे के लिए करेगी. अब आपको ये करना है कि अपने आंखों को धीरे से बंद कीजिए, और बंद करने के बाद आप उस सिचुएशन को देखिए जो बार बार आपको कई सालों से आपको परेशान कर रहा है. वो वाकया सोचने की कोशिश कीजिए जो कि आपके लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट था, बहुत ही दुख देने वाला मोमेंट था, ऐसा मोमेंट जो आपको बहुत ही पेन देता है. उसके बारे में सोचिए. किसी नियर एंड डियर की डेथ हो सकती है, किसी ने आपको कुछ बुरा बोल दिया हो सकता है. उस मोमेंट में अपने आप को ले जाइए, पास्ट में ले जाइए. इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक बहुत बड़ा सा स्क्रीन है. एक बहुत बड़े मूवी स्क्रीन के सामने आप देख रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, और मूवी स्क्रीन में आपको वो हिस्ट्री का वो एलिमेंट दिख रहा है जो कि आपको बहुत सालों से परेशान कर रहा है. अब इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि जो वो मोमेंट था, क्या वो स्टिल फोटोग्राफी थी, या वो एक मूवी की तरह आपको दिख रही है, चलती फिरती दिख रही है. उसके बारे में सोचिए. जो पिक्चर आपको अभी दिख रहा है, क्या वो ब्लैक एंड व्हाइट है या कलर है, उसके इमेज को देखने की कोशिश कीजिए. पार्टिसिपेट कीजिए. आपको वो पेनलेस मेमोरी आपके दिमाग जहन से चली जाएगी. आप जो देख रहे हैं, क्या वो 2D है या 3D है, क्या वो आप चलते फिरते अनुभव कर रहे हैं उसको, क्या वो पैनोरामिक है या फ्रेम्ड है, क्या वो फ्रेम में है किसी, देखने की कोशिश कीजिए. क्या वो क्लोज है या फार है, एकदम आंखों के सामने दिख रहा है या बहुत दूर दिख रहा है, आपको वो समझने की कोशिश कीजिए. क्या कोई इंसिडेंस है उसमें,
कोई कुछ बोल रहा है आपको, उसको ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए। क्या उस सिचुएशन में कोई डायलॉग हो रहा है या मोनोलॉग चल रहा है, सोचिए। और क्या कोई वॉल्यूम है, अगर वॉल्यूम है, तेज है, स्लो है, सोचिए। और आप क्या फील कर रहे हैं उसको इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। कोई अगर बॉडी में कोई सेंसेशन, कोई टेम्परेचर कुछ हो रहा है तो वो इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। और अब ये इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ में एक बहुत बड़ा रिमोट है और आप बड़े से मूवी स्क्रीन में इस इंसिडेंट को देख रहे हैं। आप अपने रिमोट को पकड़े हुए हैं और आपने वो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम के बटन को आपने बिल्कुल 0 प्रेस करते जा रहे हैं। वो 20 से 18, 19 करते 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 बिल्कुल 0 हो गया है। अब आपको कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही है। और अब आपने फिर से रिमोट का बटन अपने हाथ में रखा हुआ है और आप कॉन्ट्रास्ट वाले सेक्शन में जा रहे हैं और कॉन्ट्रास्ट का आपने बटन प्रेस किया और प्रेस करते 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 जो स्क्रीन है जिसमें कलर इमेज थी वो धुंधली होती जा रही है, जी 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 कर रही है स्क्रीन। और बिल्कुल ही अब वो स्क्रीन बिल्कुल काली हो चुकी है, कुछ नहीं दिख रहा आपको उस स्क्रीन में, ना कोई वॉल्यूम है, ना कोई पिक्चर है। और अब आपने जो रिमोट है वो आपने उस स्क्रीन में दे के मारा है और वो जो स्क्रीन है वो चूर चूर हो चुकी है। और वो चूर चूर होने वाली स्क्रीन छोटे से अपने आप को गैदर करते हुए दूर सूरज में चली गई है और सूरज में जाके वो भस्म हो गई। और कुछ सेकंड इस थॉट के साथ आप रहिए। और फिर धीरे से आप अपनी आंखें खोलेंगे और आप रियलाइज करेंगे कि अब जिस इंटेंसिटी का पेन आप महसूस करते थे उस सिचुएशन को देखते हुए, वो इंटेंसिटी या तो चली गई है, ये काफी कम हो गई है। और आप 3-4 बार ये अगर एक्सरसाइज करें तो वो हमेशा हमेशा के लिए पेन आपके लाइफ से चली जाएगी और आप एक अच्छा महसूस करने लगेंगे। और इसके बाद आज हम आ गए हैं अपने फाइनल सेशन के लिए और ये लास्ट सेशन है आपके चाइल्ड के बिहेवियर को एकदम से चेंज करने वाला। ये पैटर्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या हमें करना है कि एक एक्सरसाइज हमें करना है। हमें अपने बेटे को ये बोलना है, बच्चे को ये बोलना है कि आप एक काम कीजिए। आपको अपने बच्चे को ये बोलना है कि इमेजिन करो बेटा कि तुम स्कूल में हो और स्कूल में एक मूवी बन रही है और वो जो मूवी बन रही है उस मूवी में तुम हीरो हो। उस मूवी में तुम हीरो हो और तुम इमेजिन करो कि एक शूटिंग चल रही है। आप देखिए कि आपका बच्चा एक स्कूल में बैठा हुआ है, स्कूल यूनिफॉर्म में है और मूवी चल रही है और मूवी में एक डायरेक्टर आपके बच्चों को शूट कर रहा है, अलग अलग एंगल से शूट कर रहा है और आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही ब्राइट है। वो एग्जाम दे रहा है और एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो रहा है। सारे टीचर उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, सब उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपको बड़ा अच्छा लग रहा है ये देख के। टुडे दैट्स ऑल फ्रॉम मी। Thank you so much, sir. Thank you. We, on behalf of all the members of ISTD Noida chapter, I thank Dr. Mukherjee for this wonderful, so entertaining, so enlightening, and very informative talk that you have given us on successful parenting and spoken about NLP also. We also appreciate, you having to bring in this mysterious topic of NLP also quite clarified. A few points that you spoke during your speech, which I would like to highlight for all of us to wind up the session. I really like the idea of, if you want to see some change in the behavior, you have to change the belief system. That is absolutely and so true. Only if the belief system, if we somehow let our
children think about their belief system and think that, there's something wrong in their belief system, or there is this kind of belief is the right way to go about, then only we can bring about that change in our children. The other thing is the practical experience of putting yourself into your child's shoes and observing parent and child relationship and how they interact with each other from a third person's perspective was something which is truly thought provoking. I think it would these kinds of practical exercise during the session would really help all our parents, all the members, and it would make us rethink about our actions, our behavior, how we deal with our children. I think sometimes we become really harsh with our children. I think that we need to keep a check on that. The again one more exercise which you made us all practice is how to develop those five senses in your child. That was again very interesting. And actually this is something that for the first time I was undergoing such kind of practical exercises which you brought in the session. I would now request all the participants, all the members who are here, if you have any questions, I think Dr. Mukherjee is open for anything, any questions if you may have. You can also put up your questions in the chat box so that we can take it up now. Anyone, please? Go ahead with the chat box. Yeah, I anybody think can there was ask one questions. one question in between when Dr. Mukherjee was speaking. I think even if somebody has their experience, they can speak about it. Anyone, any questions? Rajappan, Upadhyay ji. Will you be, Unmute everyone, Babaji. please unmute yourself and speak. Permit me, Sir Verma, sir. I had one question. When Dr. Mukherjee was talking about, 5 types of learning style. So, I read somewhere that, in school also we have these 3 types of learning styles: kinesthetic, visual, and auditory. But then I read an article which says that some of the theory says that none of these 3 learning styles actually exist, and most of the students, most of the children, they learn by if they connect that particular concept with their real life. So is it true that these 3 styles are just in theory and practically they don't exist? However, I've heard both sides of the stories. Some say they exist, some say no. Suppose if I'm learning something new, I will only remember it for a long time if that is somehow associated with my practical experience in life. See, some other day I will probably I will keep a session how to. There is a session called Double Your Memory, wherein I can probably inform everybody how to remember things for lifelong. So, but all the people who have done NLP, who are NLP practitioner, they will tell you that the population is divided into these 3 sets of people: visual, auditory, and kinesthetic. And the kind of question which I have told you, if you ask your children about those questions, that what was the dress you were wearing yesterday, you will automatically see that their eyes will go either right, left, or Yes, down, and you yeah. and slowly, and just try to focus that while he is talking to you or her mother, what are the words he is or she is saying. Let me show you, let me see. मुझे किसी ने नहीं बताया means nobody, she or he is auditory. Just try to focus on this. With little bit of focus for a few days, you will be able to get his actual learning mode. And when you change your learning mode according to her, you will see that there is a better rapport which will get. Another thing which we need to understand is that nowadays what is happening is that in schools, barring few good schools, yeah, those we are fortunate since we are in Delhi NCR region, but
95% of the schools are still teaching 19th century topics, Yes. okay, with 20th century methodology to kids of 21st century. So this is what is happening. And so kids of 21st century will not understand, the techniques of 19th century. Okay. People nowadays, children are also not communicating. So we parents have to understand that there is a communication which is constantly happening, and that is a non-verbal communication which is happening with our children at all the time. And our children are making our video at all the time. And you will see that, our mannerism, our behavior, they inculcate those things. And it is very, very important that we keep a watch on our, behavior. And that's how Nilanjan, our your speech is cutting in children between. will improve. Absolutely. So, Absolutely. Our teachers also. Right. Any other question any of the members would like to ask? So Nilanjan- the session is such, that many of the questions have been answered in the slide. Nilanjan, could you tell us when this NLP was developed and in what circumstances? I think that will help us to connect with the present learning and Sir, unlearning. Sir, this NLP was developed by these Mr. Bandler and Mr. Grinder in the year close to 1960-65. And this NLP was initially used, on army professional, because they wanted to make the American army wanted to make their employees really ruthless, and they wanted to instill some sense of belief. There was you will not believe, there was a team, there was an American batch of soldiers who were constantly preach upon this idea that you are not mortal, means nobody can kill you. No matter what happens, nobody can kill you. You will not get killed in any of the attacks or anything. And you will surprised to know that there was a person who was in that group itself. There were 2-3 persons who were hit by number of bullets. But that belief system was so strong in them, because that was preached to them for 6 months, 8 months together, that nobody can kill you, nobody can kill you, nobody can kill you. And with various behavior and techniques. And finally, that there was a person who had 21 bullets, but he was still survived because he had this belief system that nobody can kill him. And so this is the power of NLP. And now, sports coach are using NLP to get peak performance from sports player like cricketers. Indian cricket team is using for peak performance. There are sales team in the organization who are using, and the sales manager are getting, deriving the best, sales target from their team, because they understand what are their, dominating mode, and they talk to them in that fashion. So Right. in performance, in sports, everything. One more simple question. I mean, if anybody asks before, that is, in today's generation, if you see, especially I think speaker also has a small child, moderator also talked about younger child. My question is basically, let older child, like suppose they are 30-year-old son or daughter, and generally there is a tendency they don't want to get married and they are very focused on career. Career. So any advice, how can they be told about their responsibility, social or family responsibility? Yeah, Very sir. right. Sir, that is actually that is about relationship NLP. So we can do that. For that, I would have to take some time. I have to develop questionnaires, according to that. And in relationship NLP, I can, talk about those things. That is an extra additional. Yes. So NLP can be used, and we have to frame questions according to that, whatever your target. Situation. So yeah, so this NLP has, helped people save relationship of husband and wife, father and son. So, but you have to put focus on what you are trying to achieve, and then you have to frame the questions according to it. What you Right. can do. Yes. This We question have one you can throw to the participant. panel, Vamaji. We This have question one. you can throw. You can throw this question to the participants also, if Correct. they can insight, because all our mature members are attached to us. We have It is a very interesting question. one participant from Bangalore. Yeah. If he can answer about this and tell his viewpoints. Or the elder children. Rajappan.
Yes. Could you tell Good your evening view? good evening to everyone. And I thank Mr. Nilanjan and also Sapna for giving a very good insight into the parenting. Both of them are parents and also learned people in this topic. Well, I am 60-year-old plus, and I can't claim to be a successful parent. Well, my children are educated, they are engineers and studied in New Zealand and working there. Well, what kind of influence I've had over them? Today, when I talk to them, many of them are not very pleasant, but all of us know that hindsight wisdom is the best wisdom. Today, when my children have small kids, probably I'll be able to share their experiences, what they had about me as a parent into parenting the grandchildren. Well, all of us need to understand that parenting is the simplest and yet it is the most difficult job. If you look at a laborer, the parenting is very, 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 very easy because he or she wouldn't bother about their future. Whereas you look at a civil servant parents, there is a big pressure on the parents to bring up their children or child to their status or even higher status. So it is a pressure of the society, which is also acting as a limiting factor in molding the child's behavior. As Mr. Nilanjan said, all of us need to understand the importance of giving positive stroke. Many people say that a child's mind is like a clay, or its personality can be developed like a clay pot. Well, all of us understand that, and especially the learned parents, educated and working parents. We have put pressure on the children that you will have to do better than us. And many a times without understanding their innate traits, whether they have the required innate traits to accomplish the dreams what we build for them. So it's important that we need to understand and also use the NLP technology to understand the child's aspirations and also its capabilities. So it is like making an ant to drag a 100 kg weight. It's just not possible. We need to understand what are the capabilities of the child. So we should only encourage him to transform his potential to performance, understanding his limitations and also his capabilities. Today, in these times of COVID, where the children are not allowed to go to school, there is a great responsibility on the parents because the parent is always with the child 24/7. This is a time, it's a godsend time also, in one way we can say it, that this time we can use for imbibing good qualities in the child. What we expect our children to do in their life. Definitely, he has to understand the value of truth and he has to be a truthful person. He has to understand his responsibilities towards his own families, the society, the nation, and the globe. Then he also needs to be a value creator. Then he has to build relationship with people and maintain it. So what are those qualities which will make him acceptable in the group and also a catalyst for changing others' behavior? The parents, many of them may not be able to practice all this in their own life, but definitely can counsel and also guide the children to acquire these qualities and maintain it irrespective of the difficult circumstances. Would you like the child to build a life on lies or on truth or on good values? This is what we need to decide for ourselves, and only when we are sure about what are the good qualities, what the child should imbibe, then only you can impart that. If the father says to the child that tell him that I'm not available at home when somebody wants to speak to him, what kind of message is sending to the child? So we cannot definitely blame the child if he's not telling lies and lies. So for a society to grow and progress and to have cordial relationship, I believe that truth, camaraderie, fraternity, and compassion for other human things is
these qualities are very, very important, irrespective of the material as well as positional gains what we make. If we can build our life on these fundamental values, I think it will be a very good help to the society, because the children who, when they grow up, they will become responsible citizens, and only the responsible citizen can make a responsible nation and a progressive nation. Thank you very much. Very nicely said. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. It's a very thought-provoking. Hmm. Thank you so much, sir. Madam Chairperson. Thank you very much. No, I would like to thank to Nilanjanji for such an enlightening session, for giving so much insights to all of us. And I would like to thank all the members who have connected to us actually during this pandemic, in fact, and the second wave of the pandemic. So next program, next month, we will be again looking ahead with all the people to get connected. Who are the non-members? I'm requesting them to associate with the ISTD. Kindly take the membership of the ISTD and be attached with us in the long run. It's a very old institution, in fact. It's not a new institution. So we will be having the long the relationship in that case, in fact, actually. Okay, so this much from my side, actually. So I would like Swapna ji to summarize it out and then go ahead. Mrs. Seema, Yeah, please. I would like to inform you that I'm a leadership coach and I'm also a business development coach. If you would like me to speak to you on these two topics, I can deliver talk on these topics. Definitely, definitely. You're sounding so powerful, speaker. Actually, we would love to hear you. Thank you very much. Wing Commander Warm-up will be very soon. He will be in touch with you, sir. Okay, thank you, Mr. Okay. Right. Yes. Swapna ji, your So to all the participants, members, and Dr. Mukherjee, to everyone who was a part of this monthly talk, I once again thank you so much for attending. We would really love to have such a very informative session in the months to come. Thank you so much, Dr. Mukherjee. Once again, thank you so much for this lovely talk today. Thank you. Thank you, everyone. Namaskar to all of you. Yes. Thank you. right. Thank you to Swapna ji and Mukherjee, Dr. Mukherjee, and thanks to Seema madam. See you. Bye, sir. Bye to See you everyone. for the next monthly talk, and Yes. hopefully next time we will have right ID. Yeah, Parag it's ji, human will you- error. It's Parag human ji, will error. Parag ji now has come up. Would you like to Okay. say something? Yeah, Or no, bye? Parag ji. It was lovely to be part of this group, listening to the lecture, and yeah, I was always there. I know you are. Thank you very much. See Thank you. you so much. Thank you. Pleasure. Thank you, sir. Thank you, Thank you to everyone. be connected. Yeah. Bye. Thank you, everyone.